تو سب سے پہلے بات کریں گے بلدیاتی انتخابات کی۔ جموں کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ مجموعی طور پر پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ سخت سیکیورٹی انتظامات کے بیچ ریاست کے 11 اضلاع کے مختلف وارڈوں میں پولنگ ہوئی۔ اگرچہ وادی کشمیر میں پولنگ کی شرح کافی کم رہی، تاہم خطہ جموں اور خطہ لداخ میں بڑی تعداد میں لوگوں نے پولنگ اسٹیشنوں کا رخ کر کے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ کشمیر میں پولنگ کی شرح 8.3 رہی، جموں میں پولنگ کی شرح 63.8، پونچھ میں 73.1 اور راجوری میں 81% رہی۔ پولنگ کے پیش نظر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے تھے۔ واضح ہے کہ ریاست میں پہلے مرحلے میں 321 وارڈوں کے لیے 1204 امیدوار میدان میں ہیں۔ 820 پولنگ مراکز قائم کیے گئے تھے۔ کشمیر میں 138، جموں میں 1000 اور لداخ میں 66 امیدوار اپنی قسمت آزما رہے ہیں۔ قابل ذکر بات ہے کہ نیشنل کانفرنس اور PDP نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کیا ہے۔ ادھر کشمیر میں آج علیحدگی پسندوں کے مشترکہ گروپ کی کال پر ہڑتال بھی رہی۔ اس بیچ سری نگر شہر میں اربن لوکل باڈیز الیکشن کے سلسلے میں 3 وارڈوں کے لیے بھی آج پولنگ ہوئی۔ سری نگر میں پولنگ کی شرح کافی کم رہی۔ انتخابات کے سلسلے میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ سری نگر سے دن بھر کسی بڑے ناخوشگوار واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ سری نگر میں 3 وارڈوں کے لیے کل 8 امیدوار میدان میں تھے۔ سری نگر میں پولنگ کی شرح 6.19 رہی۔ دھمکیوں، بائیکاٹ کال اور ریاست کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں کی عدم شرکت کے باوجود ریاست میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ منعقد کروانا بے شک گورنر انتظامیہ کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے، کیونکہ یہ انتخابات تقریباً پرامن ماحول میں منعقد کیے گئے۔ لیکن آج کے انتخابات سے کشمیر میں جمہوری اداروں کو کوئی بڑی تقویت ملی ہو، ایسا ماہرین نہیں مانتے، کیونکہ 149 وارڈز میں سے صرف 57 پر ہی ووٹ ڈالے گئے۔ باقی بچے 92 وارڈز میں سے 69 پر امیدوار بلا مقابلہ کامیاب قرار پائے اور 23 پر کوئی نامزدگی ہی نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ کشمیر میں ہمیشہ سے ہی انتخابات پر بندوق اور بائیکاٹ کا سایہ رہا ہے، لیکن اب کی بار نہ تو لوگوں کو امیدواروں کی کوئی خبر تھی اور نہ ہی پولنگ سٹیشنوں کا کوئی پتہ۔ کیمرہ پرسن نواز کے ساتھ شبیر احمد، نیوز 18 اردو، سری نگر۔ ادھر جموں میں پولنگ کو لے کر ووٹروں میں جوش و خروش دیکھا گیا۔ پہلے مرحلے کے بلدیاتی چناؤ کے لیے جموں ڈویژن میں 584 پولنگ مراکز قائم کیے گئے تھے۔ جموں میں ووٹروں کی کثیر تعداد پولنگ مراکز کے باہر دیکھی گئی۔ نوجوان ووٹروں کے علاوہ خواتین اور ضعیف افراد نے بھی اپنے حق رائے دہی سے استفادہ کیا۔ پرامن ماحول میں پولنگ ہوئی۔ اس دوران سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ یہاں بلدیاتی چناؤ کے لیے EVM کا استعمال کیا گیا۔ جموں میونسپل کارپوریشن کے 75 وارڈز کے لیے 447 امیدوار میدان میں تھے، جبکہ 7 میونسپل کمیٹیز کے 79 وارڈز پر 296 امیدواروں نے اپنی قسمت آزمائی۔ ووٹروں نے اس امید کا اظہار کیا کہ منتخب نمائندے علاقے کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ اسی لیے خوشی ہے کہ ہمارے جموں میں بھی ووٹ پڑے ہیں۔ 13 سال کے بعد یہ پنچایت الیکشن ہوئی ہے میونسپلٹی کی، تو ہم خوش ہیں۔ ہمیں دل کھول کے ہم نے ووٹ ڈالا۔ اچھا کینڈیڈیٹ ہمیں چاہیے ہے جو ہماری وارڈ میں کام کرے۔ کارپوریشن ایک ایسا وہ رول ہوتا ہے کہ جس میں ایک ایک لین، ایک ایک گلی، ایک ایک وارڈ کو جو کارپوریٹر ہے وہ ایک اچھی نظر سے دیکھ سکتا ہے، اور ڈیولپمنٹ کے کام جو ہیں ایک کارپوریٹر جو ہے وہ بخوبی نبھا سکتا ہے۔ اس لیے ہم اتساہت ہیں کہ کارپوریشن کی الیکشن جو ہے 13 سال کے بعد ہو رہی ہے، اور یہ اپنے ٹرن اوور میں ہونی چاہیے۔ اتنے سال پتہ نہیں کیوں گورنمنٹ انتظار کرتی رہی۔ اچھا ہے، ہو گئی، ایٹ لیسٹ ہم اپنے کینڈیڈیٹس کو جو اپنے ہمارے نمائندے ان کو آگے تو لا سکتے ہیں۔ جموں میں بلدیاتی چناؤ کے تحت پہلے فیز کے تحت آنے والے میونسپل وارڈز میں چناؤ آج ختم ہو گیا، اور جہاں تک پرسنٹیج کی بات ہے بہت ہی اچھی پرسنٹیج رہی ہے جہاں جہاں بھی ووٹنگ ہوئی ہے، چاہے جموں کے جو 75 وارڈز ہیں وہاں کی اگر ہم بات کریں، اسی طرح جو باقی وارڈز ہیں RS پورہ میں ہیں، یا اسی طرح سے راجوری میں اور پونچھ میں، پونچھ ڈسٹرکٹس میں جتنے بھی وارڈز آ رہے ہیں ان کے اندر جو فرسٹ فیز پولنگ آج ہوئی ہے بلدیاتی چناؤ میں وہ اچھی رہی ہے۔ پورا جو پرسنٹیج ہے، پولنگ پرسنٹیج بھی اچھا رہا اور پیسفلی ووٹنگ بھی ہوئی ہے۔ کیمرہ مین بنٹی کے ساتھ میں سمیر بٹ، نیوز 18 جموں۔
इस बीच डीसी जम्मू रमेश कुमार ने मीडिया नुमाइंदों को पोलिंग से मुताल्लिक तफसीलात फराहम की। डीसी ने कहा कि तमाम मुतल्लिकीन के भरपूर ताउन से पोलिंग का अमल पुरअमन और एहसन तरीके से मुनक्किद हुआ। उन्होंने कहा कि चंद एक मकामात पर वोटिंग मशीनों की खराबी की शिकायत मिली थी, ताहम वक्त पर उन्हें ठीक किया गया। जो इलेक्शन हुआ है वो 153 वार्ड का हुआ है, 154 टोटल वार्ड है। एक वार्ड जो अरनिया में है, वार्ड नंबर 6, जो कि अनकंटेस्ट, उसमें अनअपोज कंटेस्ट बना है। इसमें टोटल जो है जेएमसी से 447 जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे, जिसके अंदर बीजेपी से 75, आईएनसी से इंडियन नेशनल कांग्रेस से 74, इंडिपेंडेंट 274 और एनसीपी से 1 और नेशनल पैंथर पार्टी से 23 कैंडिडेट्स ने कंटेस्ट किया है। एमसी अखनूर से 48 कैंडिडेट्स हैं, अरनिया से 55 कैंडिडेट, जिसमें कि एक अनअपोज हो गए हैं। बिसना से 59 कैंडिडेट और गोमनासा से 21 कैंडिडेट, जोड़ियाँ से जो हैं 20 कैंडिडेट्स, खोड़ से 32 कैंडिडेट और आरएसपुरा से 59 कैंडिडेट्स ने कंटेस्ट किया है। इलेक्शन प्रोसेस पूरा बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से रहा और ये जो पहली बार ईवीएम से कराया गया वो बड़ा ही सक्सेसफुल रहा और वोटर टर्नआउट जो है वो काफ़ी अच्छा रहा। इसमें आप देखेंगे तो टोटल जो 4 बजे तक का रुझान रहा है, उसके अंदर टोटल डिस्ट्रिक्ट का जो 7 म्यूनिसिपल कमेटी और जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का टोटल जो वोटर टर्नआउट रहा है 63.83% रहा है, जिसके अंदर आपको पता है कि 584 पोलिंग स्टेशन एस्टैब्लिश किए गए थे। पूरी तरह से सुरक्षा के बंदोबस्त सब अच्छे ढंग से किए गए थे, पोल पार्टीज़ के लिए बंदोबस्त, और इसमें सभी स्टेक होल्डर्स की तरफ से बड़ा अच्छा सहयोग रहा। उधर जनूबी कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के तहत अनंतनाग की कुकरनाग म्यूनिसिपैलिटी के लिए इंतखाबात अमल में लाए गए। अनंतनाग के अच्छबल और काजीगुंड म्यूनिसिपल कमेटियों के लिए उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब करार पाए। कुकरनाग के 13 वार्डों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे, उनमें से 8 वार्डों के लिए उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए। 4 वार्डों के लिए 4 उम्मीदवारों के माबैन मुकाबला हुआ। चारों वार्डों में काफी कम तादाद में लोगों ने वोट डाले। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। ड्रोन कैमरों की खिदमत भी हासिल की गई थी। अक्सर मकामात पर मीडिया नुमाइंदों को भी रोका गया। अनंतनाग में शरह पोलिंग 7.3 रही। की कोकरनाग म्यूनिसिपैलिटी के लिए बल्दियाती इंतखाबात के पहले मराहिल के तहत आज वोट डाले गए। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अगरचे वोटिंग शरह तवक्कुं से ज़्यादा कम रही, लेकिन इंतहाई हसास तस्वुर किए जाने वाले जनूबी कश्मीर से बिलाखिर वोटिंग अमल का आगाज़ तो हुआ। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आने वाले 3 मराहिल का वोटिंग अमल का चैलेंज इंतज़ामिया किस तरह से पूरा करेगी और इन 3 मराहिल में वोटिंग की शरह फीसदी क्या रहेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कोकरनाग से मुदस्सिर कादरी। वहीं बडगाम में भी पुरअमन तरीके से पोलिंग का इनेकाद किया गया। 3 म्यूनिसिपल कमेटीज चाडूरा, बडगाम और खान साहब में से सिर्फ वार्ड नंबर 5 में ही पोलिंग हुई। रिटर्निंग ऑफिसर ने जानकारी दी कि वार्ड नंबर 5 से बीजेपी और कांग्रेस से 2 उम्मीदवार ही मैदान में थे। शाम 4 बजे तक हुई पोलिंग में 109 वोटरों ने अपने हक के रायदही का इस्तेमाल किया। बडगाम जिला में मजमूई पोलिंग की शरह 17% रही। वहीं बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में 2 म्यूनिसिपल कमेटियों के लिए वोट डाले गए। यहां 47 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें पहले ही 2 कुपवाड़ा और 6 हंदवाड़ा में बिला मुकाबला कामयाब करार दिए गए थे। कुपवाड़ा में 11 वार्डों में पोलिंग हुई। पोलिंग में अगरचे ज्यादा जोश खरोश नहीं देखा गया, ताहम कई जगहों पर बाद दोपहर वोटरों की अच्छी खासी तादाद ने अपने हक के रायदही का इस्तेमाल किया। हंदवाड़ा में सुबह से ही पोलिंग मराकज की जानिब से लोग निकल आए और बाद दोपहर तक इनमें ज्यादा इजाफा होता गया। कुपवाड़ा और हंदवाड़ा म्यूनिसिपल कमेटियों के लिए 9,683 वोट डाले जाने थे, लेकिन इनमें से कुपवाड़ा में 1713 और हंदवाड़ा में 1216 वोट डाले गए हैं। पोलिंग के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कुपवाड़ा जिला में पोलिंग की शरह 32.6% रही। अल्लाह ताला को अमन करन कायम दी तथ मुल्कस मज दोयम कथ ये कि कायम गसन गरीबन वात फायदा बस युत मतलब सोन बस बेशु का मतलब सोन ऐसे बे क्या मतलब गरीबन का फायदा बात इसमें व्हाट एवर पब्लिक रिस्पांस जो भी कुछ आया हुआ है, मैं अपनी तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूँ। वी कंग्रेचुलेट देम फॉर कमिंग फॉरवर्ड एंड कास्टिंग देयर वोट्स। हम अपनी तरफ से पुलिस एस्टेब्लिशमेंट्स की तरफ से सारे फोर्सेस मिलकर एक फ्री एंड फेयर माहौल यहाँ पर लोगों को सिक्योर तरीके से अवेलेबल करवा के दे रहे हैं। वोटर्स ने
एक कॉन्फिडेंस दिखाया है और सामने आकर वोट किया है, अपना डेमोक्रेटिक ड्यूटी जो है उन्होंने अदा किया है। जिला इलेक्शन अफसर कुपवाड़ा खालिद जहांगीर के मुताबिक हंदवाड़ा और कुपवाड़ा में अहसन तरीके से बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला मुनाकिद हुआ। उन्होंने कहा कि इसके लिए लोग मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं और बड़ा स्मूथली पोलिंग हुई बगैर किसी शिकायत के। हर बूथ पे पोलिंग हुई और लोगों ने बड़े इत्मीनान के साथ बहुत ही खुशउस्लूबी के साथ इस इलेक्शन में पार्टिसिपेशन किया। और आज जो इंतजामात थे सिक्योरिटी के वो भी बहुत ही अच्छे थे। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा दिन रहा आज, और इसके लिए लोग जो है यहाँ के जिन्होंने अच्छी तादाद में पार्टिसिपेट किया वो मुबारकबाद। बारामूला म्यूनिसिपल काउंसिल में सख्त सिक्योरिटी के बीच बल्दियाती चुनाव मुनाकिद हुए, जहां पर 15 वार्ड्स पर 35 पोलिंग मराकज कायम किए गए थे। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले 37 उम्मीदवारों में 14 खवातीन उम्मीदवार शामिल हैं। 6 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। पोलिंग मराकज पर वोटरों की तादाद कम देखी गई। बारामूला में 5.7% पोलिंग दर्ज की गई। इस दौरान कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। मेरा बिलीफ है डेमोक्रेसी पे। मैंने सोचा था पहले काम करेंगे, लोग मुझे बोलेंगे कि आप आएँ, लेकिन इस टाइम मुझे नहीं पता था कि लोग मुझे इतना फोर्स करेंगे कि आप इलेक्शन लड़ो। और मैं उसके साथ साथ ये बोलना चाहता हूँ, जो लोग हमारे यहाँ बाइकआउट करते हैं, बाइकआउट से कोई हल ना निकला है ना निकलेगा। मैं अपील करता हूँ लोगों से वोट दें और अपने नुमाइंदे को चुनें और उनको अकाउंटेबल बनाएं ताकि वो कल आपको रिप्रेजेंट करे सही मानों में। मेरी वजह से अगर यहाँ पर कोई डेवलपमेंट होगी, पानी की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बिजली की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मतलब जो हमारी पुअर पीपल है उनकी हेल्प हो जाएगी किसी जगह, तो हम किसी ना किसी का तो आगे आना है। मैं इसलिए आई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं फेस करूँ, मैं लोगों की मदद करूँ। इस चुनाव से ना कोई चीफ मिनिस्टर ना ही कोई मंत्री बनने वाला है। ये चुनाव जो है डेवलपमेंट की ओर है। और मैं आज आपके माध्यम से तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आज का दिन है, ये अपने एरिया में जो अपने वार्ड जो है तरक्कियों के लिए एक इलेक्शन होने वाला है। दूसरी बात मैं आपको साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि हम लोगों की जान भी जाए, लेकिन हम बीजेपी को यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे एंट्री नहीं देंगे। उधर बांडीपुरा के 17 में 16 वार्डों पर पोलिंग हुई। एक वार्ड पर बीजेपी उम्मीदवार ने पहले ही बिला मुकाबला कामयाबी हासिल की थी। इस चुनाव में 43 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई है। कुलूसा में एक आजाद उम्मीदवार ने कांग्रेस पर बोगस वोटिंग का इल्जाम लगाया, जिस वजह से इस पोलिंग मरकज पर काफी देर तक हंगामा आराई देखने को मिली। प्लान बांडीपुरा में बीजेपी उम्मीदवार सर पर पत्थर लगने से जख्मी हुआ है। अगरचे पुलिस ने इस वाकये की तौसीक नहीं की, ताहम बीजेपी जिला सदर बांडीपुरा ने अपने उम्मीदवार के जख्मी होने की तस्दीक करते हुए कांग्रेस पर पोलिंग अमल को दरहम बरहम करने का इल्जाम लगाया। चुनाव के दौरान प्लान बांडीपुरा और लांकृषिपुरा इलाकों में पथराव और आंसू गैस शेलिंग के वाकयात भी पेश आए। लांकृषिपुरा में पैलेट लगने से एक खातून के जख्मी होने की भी इतला है। बांडीपुरा में 3.3% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। अपना वोट कास्ट किया, और ये जो कांग्रेस वाले हैं ये नहीं चाहते कि यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए। और जो ये पत्थर वत्थर का सिस्टम हो रहा है, सारा सब कुछ कांग्रेस वाले करा रहे हैं इधर। और जो आपने आदिल साहब की बात की, उसको थोड़ी सी पत्थर लगी है, इक्का दुक्का पत्थर होता है। अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा यहाँ सारा सिस्टम सिक्योरिटी का है, अच्छा निज़ाम है, सारा पीसफुल चल रहा है। उधर करगिल में 78% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। करगिल टाउन के 13 वार्ड से 37 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में थे। यहां इंतखाबात का पुरअमन तरीके से इनकाद हुआ। वार्ड नंबर 11 से कांग्रेस उम्मीदवार ने इल्जाम लगाया कि एनसी और पीडीपी ने प्रॉक्सी उम्मीदवारों को खड़ा किया था। इस इलेक्शन के थ्रू लोग अपने जो प्रॉब्लम्स है अपने कैंडिडेट को बता सकेंगे, खुसूसन टाउन का जो प्रॉब्लम्स है वो कहीं उजागर नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ इनके थ्रू हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो उजागर होंगे आज के बाद। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। और पहली बार मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम पहली बार यहाँ वोटिंग के लिए आए हैं। मेरे ख्याल में तारीख में पहली बार है शायद डिस्ट्रिक्ट में, तो मैं जो है अपने हिसाब से फर्स्ट टाइम यहाँ पे वोट कास्ट करने आया हूँ। पहले जो एमएलए एमपी लेवल में होता था, अब मोहल्ले लेवल में हो रहा है। तो हर गली में हर कोचे का अपने कैंडिडेट को जो पता होता है अपने महल्ले का कि कहाँ पे क्या डेवलपमेंट चाहिए। तो हम उम्मीद रखते हैं कि वो अच्छा काम करेंगे। देखते हैं, आप फर्स्ट टाइम उनके लिए भी एक एग्ज़ाम है, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पे हुआ है ये म्यूनसिपल इलेक्शन। इसमें यह है कि ग्राउंड रियलिटी जो है वो कुछ और है। भले ही इन्होंने एनसी और पीडीपी ने जो है स्टेट लेवल पे इन्होंने बाइकआउट किया हो, बट ग्राउंड रियलिटी में यहाँ पर मैक्सिमम जो है जितने भी ये जो हमारे वार्ड्स हैं
उनमें प्रॉक्सी जो है इन्होंने कैंडिडेट्स निकाले हैं, उतारे हैं। दिखावा कुछ और है, करता कुछ और है। उधर लेह में भी वोटरों ने पोलिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेह में पोलिंग का फीसद 54.23 रिकॉर्ड किया गया। यहां पर 13 वार्ड्स में कुल 29 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेह में पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल मुकम्मल किया गया। उधर राजौरी जिला में वोटरों में काफी जोश खरोश देखा गया। सख्त सिक्योरिटी के बीच यहां पोलिंग कराई गई। सुबह से ही पोलिंग मराकज पर वोटरों की खासी तादाद देखी गई। दिन भर पोलिंग मराकज पर इब्तिदा में ईवीएम की खराबी की शिकायत रही, जिसे बाद में दूर कर लिया गया। वोटरों ने उम्मीद जाहिर की कि मुंतखब काउंसलर्स इनके वार्ड्स में काम करेंगे और बुनियादी मसाइल को हल करने में अहम रोल अदा करेंगे। आज हम सुबह 7 बजे से आए हुए हैं और हमने आज अपना पोल डाला है, वोटिंग किया है, क्योंकि 13 साल से यहाँ पे कोई म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन नहीं हुए थे। इस बार म्यूनसिपैलिटी के जो इलेक्शन हुए, हमें उम्मीद है कि जो भी जीतेगा गलियों, सड़कों और नालियों के काम तो होंगे। मैंने पहली बार वोट डाला, मुझे बहुत अच्छा लगा वोट डालकर। यहाँ से पता चलेगा जो भी जीतेगा हमारी रोडें ठीक करेगा, कुछ जो भी चीज़ें हैं, जो भी सामान उनको करना है, जो उनका काम है वो सब करेंगे। खुशी हो रही है, हमारा पहला वोट है, हमारी वोट की वजह से कोई जीतेगा और हम चाहते हैं जो भी जीते वो हमारा काम अच्छे से करे। तो वहीं रियासत के दीगर मकामात की तरह पुंछ और सुरनकोट में भी बल्दियाती चुनाव मुनक्किद हुए। यहां वोटरों में काफी जोश खरोश देखा गया। सुबह 7 बजे पोलिंग शुरू होते ही पोलिंग मराकज पर कसीर तादाद में वोटर जमा हुए और अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। बीजेपी के रुकन असेंबली प्रदीप शर्मा ने वार्ड नंबर 8 में अपना वोट डाला। जिला के इलेक्शन अफसर राहुल यादव ने बताया कि पुंछ में 71% और सुरनकोट में 89% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। बढ़ चढ़कर इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, चाहे वो पुंछ हो या फिर सूरनकोट में हमारे 13 वार्ड्स में से 4 वार्ड में कंटेस्टेड जो थे वो अनअपोज्ड जो है वो इलेक्ट हुए थे। सो जो है टोटल जो है वहाँ पे 9 वार्ड में इलेक्शन हुए और वहाँ पे तकरीबन 89% वोटिंग हुई। इसी तरीके से हमारा जो पुंछ है यहाँ पे भी 17 वार्ड में इलेक्शंस थे और लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर यहाँ पर भी पार्टिसिपेट किया और 71% वोटिंग यहाँ पर भी रही। सो लोगों का बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस रहा इन इलेक्शंस को लेकर, जो ये दिखाता है कि किस टाइप से लोगों का जो है पूरे हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में अर्बन लोकल बॉडीज में कितना विश्वास है, किस तरीके से लोग जो है ग्रास रूट डेमोक्रेसी पे और उसको स्ट्रॉन्ग करने में विश्वास रखते हैं। आरएसपुरा में भी सख्त सिक्योरिटी के दरमियान बल्दियाती चुनाव के लिए पोलिंग हुई। सुबह से ही पोलिंग मराकज पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। आरएसपुरा के 13 वार्ड्स में 59 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में थे। आरएसपुरा के एसडीएम जगदीश सिंह ने बताया कि आरएसपुरा में 80% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। पूरा में 80% से ज़्यादा पोलिंग हुई है। 80.14% जो है पोलिंग हुई है, जिसमें से 4118 मेल वोटर्स थे और 3731 जो है वो फीमेल वोटर्स थी और 7849 वोटर्स जो हैं, टोटल 9793 में से 7849 वोटर्स ने अपना जो है वो वोट डाले हैं। बहुत बढ़िया रहा, कहीं भी कोई अप्रिय घटना या ऐसा किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सब जगह बड़ी शांति से पीसफुली पूरा जो मतदान हुआ और 4 बजे पूरे जो है पोल समाप्त हो गए। उधर जम्मू में आज बल्दियाती चुनाव के दौरान पहली मर्तबा वोट करने वाले दराज दहिंदों की खासी तादाद देखी गई। इस मौके पर इन वोटरों के चेहरों पर मुस्कान थी। इन वोटरों का कहना था कि वार्ड में काउंसलरों के इंतखाब से यहां मौसर तरीके से तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तरक्की के अमल में नौजवानों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। डाल रहा हूँ यहाँ पे, मुझे बहुत ही खुशी है कि ये सारे लोग मिलके कुछ करना चाहते हैं, हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनसे उम्मीद रखते हैं कि जो भी है या हमारे नहर का जो भी है, जहाँ पर भी हर का 67 वार्ड का हर जगह जाके अच्छा सा काम हो और एक मतलब कि कोई अच्छा नेता हमारे मतलब कि आगे जागरूक हो और सबको जागरूक करे। हम ये उम्मीद रखेंगे जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो उनको सॉल्व करें और भी जो भी हमारे लिए वो कर। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह साबिक वजीर सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि बल्दियाती पंचायत इंतखाबात लोगों के बुनियादी मसाइल हल करने के लिए मुनाकिद किए जाते हैं। उन्होंने बाइकआउट करने पर एनसी और पीडीपी पर निशाना साधा। सज्जाद लोन ने कहा कि मिलिटेंट नहीं बल्कि लोग फैसला करने के मजाज हैं कि आया इंतखाबात होने चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि इस बाइकआउट से सिर्फ गरीब आवाम का नुकसान होगा। इससे कबल उन्होंने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया।
बिल्कुल बुनियादी हक है लोगों का कि ग्रास रूट लेवल पर कमिटीज़ बने, लोकल बॉडीज़ के जो हैं ये सारी कमिटीज़ बने, ताकि जो बेसिक काम है सफाई का, टाउन को बनाने का, वो करें। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। हम लोगों से हमेशा वोट मांगते हैं, आज हमने खुद वोट डाला है। थोड़ा सा ये जो बेसिक नीड्स का इलेक्शन है, हम क्यों उसमें बाइकआउट करें? अगर सफाई करनी है टाउन की, उसमें क्या बाइकआउट करनी है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने ये बाइकआउट की सियासत देखी है 25 साल की। सिर्फ पार्टी की बर्बादी होती है और कुछ नहीं होता है, लोग परेशान होते हैं। बाकी पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनके पास इससे ज़्यादा सीरियस, इससे ज़्यादा टॉप लेवल के तरीके हैं बाइकआउट के। उनके एमपी हैं, एमएलएज हैं, वो इस्तीफा दे सकते हैं, वो तनख्वाह लेते हैं, उसको बाइकआउट कर सकते हैं, वो सीडीएफ लेते हैं, उसका बाइकआउट कर सकते हैं, वो सिक्योरिटी लेते हैं, उसका बाइकआउट कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट के घरों में रह रहे हैं, उनका बाइकआउट कर सकते हैं। बाइकआउट तो वो होता है जिसमें अपना नुकसान हो, लोगों का नुकसान करने से उसका बाइकआउट का क्या फ़ायदा है? सजाद साहब, आपकी नज़र में क्या इलेक्शन का वक्त जो है ये मौजूद था? 96 में इलेक्शन हुआ जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस तो थी नहीं ग्राउंड पर कहीं, वो 96 के इलेक्शन में आई, तब कौन से वोट पड़े? 2002 में पीडीपी आई, कितने वोट पड़े तब? 2-2, 3-3 हज़ार से तो एक एमएलए बना, वो ठीक। ये बेचारे ये छोटे, देखिए बिल्ट इन थ्रेट, कोई थ्रेट हो वो थोड़ी डिक्टेट करेंगे इलेक्शन कब होगा, तो यहाँ के लोग डिसाइड करेंगे। 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों को मारा गया, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीधा निशाना जो है भाजपा पर ठोक दिया। तो आपको क्या लग रहा है, क्या इसमें कोई सियासत चल रही है, या आप इससे किस नज़रिए से देख रहे हैं कि अगर वो भाजपा पे जो है सरकार पे ही इल्ज़ाम सीधा लगा रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगाया, किसी एक फर्द ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में लगाया। इररिस्पॉन्सिबल, टोटली इररिस्पॉन्सिबल। यही हुआ है ना, कातिल को क्लीन चिट, वो किसी और का नाम ले लो, रॉन्ग। अगर आज इलेक्शन हो पा रहे हैं, यहाँ से चिमी गोइयाँ हो रही है कि सरकार नहीं बनेगी, क्या आपको लग रहा है कि इलेक्शन के बाद सरकार बनेगी? नहीं, क्यों? इलेक्शन कुछ भी हो सकता है, अभी तो सस्पेंडेड एडमिशन में है, डिसॉल्व हो सकती है, नए इलेक्शन हो सकते हैं, अभी तो खैर पार्लियामेंट इलेक्शन है। अच्छा सजाद साहब, अगर सरकार बनती है तो वजीर आला की कुर्सी के दावेदार कौन हो सकते हैं आज? मुझे नहीं पता है सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, मुझे तो अभी पार्लियामेंट इलेक्शन जो है पहला लक्ष्य लग रहा है कि हम पार्लियामेंट की इलेक्शन की तैयारी करें। आपको लग रहा है क्या इससे आवाम को कोई बड़ा फायदा पहुंच सकता है? क्यों नहीं पहुंच सकता है? आप कैसी बात कर रहे हैं? हजारों करोड़ जो है बंद था क्योंकि हमारे पास कमेटियां नहीं थी। अरे आवाम से पूछिए ना, जब कल काम होंगे डेवलपमेंट के वो जाने। आप मुझे एक चीज़ बताएं, मेरे यहाँ 70 पंचायतें हैं, किस गांव में नरेगा का कौन सा काम करना है, कौन सा ड्रेन बनाना है, कौन सी सड़क, मुझे कहाँ पता है? तो लोकल लोगों को पता है, लोकल ग्रास रूट डेमोक्रेसी को पता है। मैं तो कहता हूँ ये सारे पावर्स हमने शिफ्ट करने देने चाहिए। एमएलए का काम तो लॉ मेकर होता है, कानून बनाना होता है, ये तो इनका काम होता है, ये तो आधी डेमोक्रेसी है। कोई पैगाम होगा आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए, क्योंकि उन्होंने बाइकआउट? मेरा कोई पैगाम नहीं है, वैसे अगर करें बाइकआउट तो अच्छी बात है, नए नए लोग आएंगे, वो भी काफ़ी देर 40-50 साल बैठे हैं, अगर बैठी जाएं वो घर में तो नए लोग आएंगे तो शायद स्टेट के लिए अच्छा होगा। अब रुख करेंगे कुछ दीगर खबरों का। जिला पुलवामा के पिंगलीना इलाके में इतवार की शाम कुछ नामालूम अफराद ने पंचायत घर की इमारत को नजर आतिश किया। अगरचे फायर सर्विस अमले ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन आग की इस वारदात में पंचायत घर की इमारत को काफी नुकसान पहुंचा। इमारत के अंदर मौजूद सामान भी खाकिस्तर हुआ है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक ऐलान के बाद जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर पंचायत घरों की इमारतों को नजर आतिश करने की कई वारदातें रूनुमा हुई हैं। उधर श्रीनगर में आज जराये के मुताबिक कम अज कम 72 सियासी लीडरों की सिक्योरिटी हटा ली गई है। जिन लीडरों की सिक्योरिटी हटा ली गई है इनमें कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी लीडर्स शामिल है। सिक्योरिटी हटाने के मामले पर आज कांग्रेस के सीनियर लीडर इम्तियाज खान ने लाल चौक पर एहतजाज किया। इम्तियाज खान ने कहा कि अगर उनके साथ कोई नाखुशगवार वाकया पेश आता है तो इसके लिए हुकूमत जिम्मेदार रहेगी। उन्होंने हाल ही में 2 एनसी वर्करों की हलाकत का हवाला दिया। ज़्यादा सुपर सेंसिटिव एरिया में रह रहा हूँ, मुझे सिक्योरिटी विड्रा की गई है, कम्प्लीटली सिक्योरिटी विड्रा की गई है और बगैर रीज़न बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा हूँ और मेरी जान का बहुत ही खतरा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने गवर्नर सत्यपाल मलिक के हालिया एक बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। गवर्नर ने मुबैना तौर पर कहा था कि कश्मीर में पुरतशद्दुद हालात के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और साबिक मरकजी हुकूमत जिम्मेदार है। सागर ने इल्जाम लगाया कि मरकज में बीजेपी हुकूमत के कहने पर गवर्नर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं।
वाकई तो हम चाहते थे कि गवर्नर साहब के आने से यहाँ कुछ हालात बदल जाएं और ये जो खून खराबा ये बंद हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं और ख़ासकर कल का जो स्टेटमेंट है जिसमें गवर्नर साहब ने लगता है कि जो मर्यादा है इस ओहदे की, मुझे लगता है कि उसकी बराबर वो मर्यादा नहीं रही है जिस तरह वो बयान दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक पार्टी के बारे में कहा गया है कि वो जिम्मेवार है। मुझे लगता है ये जो गवर्नमेंट का ओहदा पॉलिटिकल ओहदा ये अज्यूम करता है, पॉलिटिकल रोल अज्यूम करता है, ये दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, नाइदर इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। अब हमें कोई लेक्चर दे इस पे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या रोल रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक यहाँ की तहरीक है, शेर कश्मीर क़यादत इस तंजीम ने कौन सी जंगें लड़ी हैं, तहरीकें लड़ी हैं, जद्दोजहद लड़ी हैं, वो सब पे आया हैं। लेकिन आज पॉलिटिकल कुछ पॉइंट सिक्योर करने के लिए जो इन पार्टियों की वो गवर्नर साहब ने वकालत की है, दो पार्टियों की, शायद उनको मालूम नहीं होगा, शायद उनको मालूम होगा भी कि 400 कुछ लोग पिछले 4 साल में जो तबाही और बर्बादी यहाँ हो गई। आज हमारे फ़ौज के बड़े अफसर ये बयान देते हैं कि कश्मीर में 300 से ज़्यादा मिलिटेंट एक्टिव हैं और 250 बिल्कुल क्रॉस करने को तैयार हैं। तो इसे अखज़ किया जा सकता है कि हालात वादी के क्या हैं, और उन जिन दो पार्टियों की ये तारीफ़ें कर रहे हैं गवर्नर साहब कि उन दो पार्टियों का क्या योगदान रहा है जो आज के हालात। सोपोर में वाक़ एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्रूट मंडी में मुनासिब ट्रांसपोर्ट खिदमात न होने से यहां की तिजारत पर बुरी तरह असर पड़ रहा है। मेवा सन्नत से वाबस्ता अफराद ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत की लापरवाही से उन्हें कई मुश्किलात का सामना है। उनका कहना है कि मुनासिब ट्रांसपोर्ट खिदमात न होने से वो मुल्क की दीगर रियासतों तक मेवा मुंतकिल नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रकों की मांग में इजाफे से किराए भी बढ़ गए हैं। फ्रूट मंडी सोपोर के सदर ने मुनासिब ट्रांसपोर्ट फराहम करने की हुकाम से अपील की है। दीगर रियासतों से ताल्लुक रखने वाले ताजरीन का कहना है कि हस्ब ज़रूरत ट्रांसपोर्ट न होने से उनकी तिजारत मुतासिर हो रही है। लोगों ने फ्रूट मंडी में पीने के पानी की किल्लत की भी शिकायत की है। किराया बहुत ज़्यादा हुआ है। गवर्नमेंट को चाहिए कि FCI गाड़ियाँ जो 6-6 दिन उधर अनलोड नहीं होते उनको अनलोड किया जाए जल्दी, ताकि इस मंडियों में गाड़ियां पहुंच जाए और यहां से ये माल उड़ जाए और ग्रोवर उसको नुकसान ना हो। क्योंकि जो भी लॉस यहां होता है ये सीधा डायरेक्ट ग्रास रूट लेवल पे जो ग्रोवर होता है उसको नुकसान हो जाता है और इससे लोग जो है कर्जों के नीचे दब जाते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ट्रांसपोर्ट डाइवर्ट करके यहाँ से जो एम्प्टी गाड़ियाँ बाहर से आती हैं उनको टैक्स फ्री करके यहाँ डाइवर्ट करें और यहाँ से माल उड़ जाए। जैन के गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि कृपया करके, हम बाहर के लोग हैं, यहाँ पे बहुत परेशानी है गाड़ी के लिए, हमारी समस्या को हल करें और यहाँ पे नीचे से रनवे से आने वाला गाड़ी को जल्दी से जल्दी मंडी में पहुँचाए। ये एशिया की सबसे महान मंडी है। हम व्यापारी लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। हमारे ड्राइवर लोग आते हैं बिहार से, राजस्थान से, कलकत्ता से, उन लोगों को यहाँ पानी नहीं मिल रहा। ये पानी लेने के लिए मस्जिदों में जाते हैं। का सिस्टम ही ठीक नहीं है। हमारी यही रिक्वेस्ट है, यहाँ का सिस्टम ठीक होना चाहिए। वादी कश्मीर में मेवा सन्नत हुकूमत की अदम तवज्जुही की शिकार हो रही है। रवां बरस माल बरदार गाड़ियों के किराए में बेतहाशा इजाफा होने से मेवा सन्नत से जुड़े अफराद में तशवीश पाई जा रही है। जिला पुलवामा की फ्रूट मंडी में पहले ही जगह की कमी से काश्तकार परेशानी में मुब्तला है। किराए में इजाफे से इन लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। 105 रुपये किराया देना पड़ता है। आप बताओ ये 105 रुपये देकर जब वहाँ पे रिटर्न्स क्या आएंगे हमको, हमें रिटर्न समझो वो उसमें कोई जमा ही नहीं कुछ रहता है। इसलिए मैं आपकी चैनल की वसादत से आला हुकाम तक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बिलखुसूस ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को आगाही करता हूँ कि मेहरबानी करके ये जो ये फ्रेट है इसको एतदाल में रखिए। जब ये एतदाल में रहेगी तो भी हमारा कुछ नफा बन जाएगा। कौमी शाहरा पर नाशरी टनल से बानीहाल टनल तक ट्रैफिक जैम मामूल बना हुआ है। ट्रैफिक जैम की वजह से की वजूहात और इसके बाद पेश आने वाली मुश्किलात पर देखिए हमारी नुमाइंदे बिलाल बाली की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर कौमी शाहरा जिला रामबन में इस वक्त मौत का खौफनाक साया बनी हुई है। गुज़िश्ता दिन 22 कीमती जानों के ज़िया के बाद इंतजामिया और ट्रैफिक ओहदेदारों को मुहासिबा करना पड़ा। शाहरा पर नाशरी टनल से बानीहाल तक ट्रैफिक जैम लगना आजकल एक आम सी बात हो चुकी है।
हजारों की तादाद में मुसाफिर व माल बरदार गाड़ियां 2-2 दिनों तक दरमांदा हो रही हैं। कौमी शाहरा को 4 गलियारों वाली सड़क में तब्दील करने के लिए एक जानिब काम की रफ्तार में तेजी लाने की बात कही जा रही है, लेकिन मौजूदा शाहरा की खस्ताहाली, ट्रैफिक का निज़ाम मुकम्मल तौर से दरहम बरहम होना इस वक्त हुकूमत और इंतज़ामिया के लिए एक बड़ा सवाल है। कौमी शाहरा की खस्ताहाली, तामीराती कंपनियों की मनमानी और ट्रैफिक पुलिस की लहिया अमल को नाफिज करने में कोताही से इस कौमी शाहरा पर सैकड़ों जानें ज़ाया हुई हैं। हम श्रीनगर दिल्ली चलते हैं, हमें रोज परेशानी इस रोड पे होती है। रोड भी खराब है और ट्रैफिक जाम भी होता है। रोज हमें 4 दिन 5 दिन उठाने पड़ते हैं रोड में। किसी जगह में पानी भी मिलती नहीं है, खाना भी नहीं मिलता है, पैसेंजर भी तंग होते हैं। हर एक छोटा गाड़ी भी फंस जाती है और बड़ा गाड़ी भी फंस जाती है। इससे पहले कभी इतना लंबा सफर तय करा ही नहीं, हम पहली बार ही घर से निकले हैं। हम शादी में जा रहे हैं, इस वजह से निकले। हमारे घर से फोन आए जा रहे हैं कि बच्चों को ध्यान रखना, और इतने लंबे उल्टे कर करके सो गए बच्चे हमारे। हम सुबह 5 बजे से निकले हुए। दिक्कत हुई है जब से ये काम शुरू हुआ है, तब से इस नेशनल हाईवे पे ज़्यादा दिक्कत हो गई है, क्योंकि आगे यहाँ से रामबन से बानियाल तक हर किसी जगह पे काम चल रहा है और ट्रकें दोनों तरफ से आ रही है, उसकी वजह से जाम चल रहा है। और ये भेड़ बकरियाँ भी इसी रोड पे आ रही हैं, पैसेंजरों की कोई वैल्यू नहीं है। इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी पर आवाम सवाल उठा रही है कि तामीराती कंपनियों पर नकील न कसना और ट्रैफिक जैम की सूरत हाल से निपटने के लिए पुख्ता लाही अमल का न होना ही इन तमाम मुश्किलात की बुनियादी वजह है। इस सिलसिले में न्यूज़ 18 उर्दू ने ट्रैफिक एसएसपी नेशनल हाईवे से बात की तो उनका कहना था कि उनकी जानिब से लाही अमल को बनाया गया है, लेकिन आवाम का साथ मिले बिना इस पर अमल आवरी मुश्किल है। जो ट्रक है उनका मूवमेंट ज़्यादा है, फ्रूट्स को लेकर के जा रहे हैं, तो जो 6 टायर वाले ट्रक हैं उनको हमने डाइवर्ट किया है मुगल रोड से। जो खाना बदोश लोग चलते हैं उनकी मूवमेंट को हम रोक तो नहीं सकते हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है इस समय निकलना, लेकिन हमने कुछ एरियाज़ में उनको अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड किए हैं। और जहाँ पर अल्टरनेटिव रूट नहीं है वहाँ पर जहाँ कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने कुछ काम भी किया हुआ है, कुछ रैंप बनाए गए। हम कुछ फोटोग्राफी करेंगे पूरे जहाँ पर जैमिंग होता है, और ऐसी गाड़ियाँ जो कि डबल ट्रिपल करके वहाँ पर खड़ी हैं उनका ग्रुप फ़ोटो होगा, उसके ऊपर हम एक स्टिकर लगाएंगे और उस स्टिकर के साथ उसकी इंडिविजुअल फ़ोटो और उसके घर में हम नोटिस भेजेंगे कि आपने इस डेट को इतने टाइम पर इस जगह पर ये वायलेशन की थी, इसकी आपकी ये कंपाउंड मनी है, यहाँ पर आकर जमा करवाइए, नहीं तो कोर्ट में हम चालान पेश करेंगे। वादी को मुल्क के दीगर हिस्सों से मिलाने वाली कौमी शाहरा की खस्ताहाली, कंपनियों की मनमानी और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों का ये सिलसिला अगर इस वक्त रोका नहीं गया तो आने वाले मौसम सरमा में ये सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। लोगों ने मौसर ट्रैफिक निज़ाम बनाने का हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रामबन से बिलाल बाली की रिपोर्ट। उधर कस्बा त्राल को मिलाने वाली अहम डाडसरा अवंतीपुरा राबिता सड़क की कुशादगी और मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए सर्फ किए गए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। ताहम लोगों का कहना है कि मुकद्दम मोहल्ला त्राल के करीब सड़क की हालत जूं की तूं बरकरार है। उन्होंने कहा कि मोहल्ले में कुछ असर रसूख रखने वाले लोगों ने गैर मजाज तामीरात खड़ी की हैं, जिनको मुतल्लिका महकमा मुनहदिम नहीं कर पा रहा है। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि इस हसास मामले की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाए। इस हवाले से R&B के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जहूर अहमद ने बताया कि महकमा इस मामले पर गौर कर रहा है। साइड वाइडनिंग चल रही है, मतलब फ्रॉम अवंतीपोरा टू त्राल। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे तो यहाँ तक जिसको हम बोलते हैं हरदमीरा तक तो पूरी तरीके से साइड वाइडनिंग पूरी तरीके से हो गई है। लेकिन अगर यहाँ पर देखेंगे कि जो मेन टाउन है त्राल का, यहाँ पे तो साइड वाइडनिंग बिल्कुल रोक दिया है। शॉप्स है, रेडियाँ हैं, बाकी है, मतलब कोई हटाते नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन कोई मतलब तवज्जो नहीं दे रहे, कि जिसकी वजह से हमारे को परेशानी का सामना करना पड़ता है। रोज़ रोज़ हमको जामिंग होती है, 1 घंटा 1.5 घंटा, जबकि बच्चे हम स्कूल के लिए लाते हैं गाड़ी में, उनको तो प्रॉब्लम हो रही है। डार से सड़क पे तलगत मीर बोन तान या द्रुमल बोन तान ये ठीक कर अत पे हर कुन सारसी नचलन योर मकान नचलन देवार नचलन कह चीज़ यम कि 2-2-3 घंटे जाम गन। अपील सोन यह कि अगर हसा ये सड़क जल्द जल्द गई कार्रवाई गई सड़क, यह क्या दलील, यह क्या वजह, यह क्या थोत तुल।
तहसील मागाम के बंडगाम में राबिता सड़क खस्ताहाली की शिकार है। बंडगाम के लोगों ने इल्जाम लगाया कि हर बार इस इलाके को नजरअंदाज किया गया है। लोगों का कहना है कि सड़क पर आज तक कभी भी मैकडम नहीं बिछाया गया, बल्कि सिर्फ वादे किए गए। बंडगाम के लोगों ने मुतल्लिका महकमे के अफसरान और MLA बीरवा पर भी इल्जाम लगाया कि वो इस इलाके के लोगों को हो रही मुश्किलात पर कोई खास तवज्जो नहीं दे रहे हैं। राबिता सड़क की खस्ताहाली की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से राबिता सड़क की बहाली और मरम्मत के लिए इक़दाम करने का मुतालबा किया। हमारी रिप्रेजेंटेशन इन इलेक्शन फ्रॉम 1957 अबो 80% है। हमारी जो सड़क है दैट इज स्टिल इन द शैम्बल्स। और रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत के आय वक्तन फवक्तन यम दिलास बुजुर्ग वन यम दिलास दित तरह फिक्र वर्मा तोन आव खाली सनिस बेल्टस अकिस मखसूस दायरस मज